Uh, so Jesus said in Matthew chapter 6, we can go to Matthew chapter 6. मत्ती के 6 अध्याय में जाएंगे. Verse 19 to 25. 19 से लेकर 25 तक वचन. Jesus said, do not lay up for yourselves treasures upon earth where moth and rust corrupt, destroy, and where thieves break in and steal. But lay for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroy, where thieves do not break in and steal. For where the treasure is, there your heart will be also. The lamp of the body is the eye. Therefore, your eye is clear, then the whole body will be full of light. But if your eye is bad, then your whole body will be full of darkness. Therefore, if the light that is in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will hold on to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. For this reason, I say to you, do not be anxious for your life, or what you shall eat, or what you shall drink, or nor for your body as what you shall put on. Is not life more than food, and body more than clothing? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंग लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा. इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि क्या हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? Amen. So these are the words of Jesus Christ, who is our Savior and Lord and the King of all the universe. His words of truth. तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन है, जो कि हमारा उद्धार करता है, जो पूरे जगत का उद्धार करता है, और वो सत्य वचन है. And he's telling all these things to his own children, disciples of Jesus Christ, Christians, born again Christians. तो यीशु मसीह ये अपने चेलों को, जो कि नए जन्म पाए हुए विश्वासी है, मसीही हैं, उनसे कह रहे हैं. So when you see people all around us, all unbelievers, amassing, accumulating lot of material things and money and all gold and all with them, you also don't do the same, don't copy them. जब आप देखते हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं, इस दुनिया की जो धन दौलत है, सब कुछ पैसे जो है इकट्ठे करते रहते हैं, उनको देखकर उनके सदृश ना बनो. Because all these things will be one day be destroyed. People will come and steal it and destroy it, and you lose it for forever. क्या होगा कि एक दिन लोग आकर इसका नाश कर देंगे, लोग आकर इसे चुरा लेंगे, और एक दिन ये सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा. But Jesus said, you must keep all your treasures in heaven. यीशु मसीह ने कहा हमें अपना खजाना जो है वो स्वर्ग में रखना है. The treasure in heaven is what we send to God and what we invest our time and money and everything that we have for the glory of God. तो खजाना जो है वो ये है कि हमारे पास जो समय है, हमारा पैसा, हमारा जो कुछ भी है, हम परमेश्वर के पास देते हैं, वहां पे हम इकट्ठा करते हैं. We need to live on things of the earth, so we have to do our things, but our activities should center around God and Jesus Christ and His Word. हमें इस पृथ्वी पर जीना है, तो पृथ्वी पर के काम भी करना है, परंतु हम जो कुछ भी काम करते हैं, सब कुछ का केंद्र जो है यीशु मसीह होना चाहिए. यीशु मसीह के इर्द गिर्द हमारे सारे काम होने चाहिए. The word of God says God is prepared for us that what eye has not seen, nor the ear has heard, nor even the heart has imagined. God is preparing for those who love Him. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम करने वालों के लिए जो चीजें बनाई हैं, वो किसी की आंखों ने नहीं देखी है, किसी के कानों में सुनाई नहीं पड़ा है, और किसी के हृदय में बिल्कुल भी आई नहीं है. Jesus said, this world is not our home.
And this world, Jesus said, my kingdom is not of this world, so we must not run after the things of this world. यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो राज्य है इस पृथ्वी पर का नहीं है, तो हमें इस पृथ्वी पर की चीज के पीछे भागना भी नहीं है. We have to live here for a very short time, that we have to remind us ourselves over and over again. तो हमें ये अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए ही हैं. As we sang the song, the 4 दिन की जिंदगी है, and there are only 2 days when we have strength, that is when we are youth. जैसे कि हमने इस गीत को गाया कि 4 दिन की जिंदगी है, उसमें सिर्फ 2 ही दिन है जो हमारी जवानी के दिन होते हैं. And all of us have to die one day. और हम सभियों को एक दिन मरना ही है. We never like to think about death because it brings a lot of disturbance, and but death is a very certain thing in each one of our lives. हम मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें दुख आता है उसको सोचकर, परंतु वो सबके जीवन में होना ही है. And during this time while we are on this earth, we have to prepare ourselves for our eternal destination, eternal home. परंतु जब हम इस जीवन में हैं इस पृथ्वी पर, तो हमें अपने अनंत काल का जो घर है उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी. So when we are preparing and thinking about our heavenly home, then we think less about all the things of this world. जब हम अपने स्वर्गीय घर के लिए सोचेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, तो हमारा इस पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर का जो सोच विचार है वो कम हो जाएगी. Jesus said, verse 21, where your treasure is, there your heart is also. 21 वचन पे यीशु कहते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. If our treasure is on things of this world, then our heart also will go there. Our mind will go there. Our heart will go there. But if our treasure is for God and His kingdom and His people and His work, then our heart and our mind will be there also. अगर हमारा खजाना इस पृथ्वी पर का है, तो हमारा मन जो है, हमारा ध्यान जो है, हमेशा उसी पर लगे रहेगा. अगर हमारा मन स्वर्गीय घर की ओर लगा हुआ है, हमारा धन वहां पे हमने इकट्ठा किया है, तो हमारा मन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के लोगों की ओर जाएगा. And Jesus said, verse 22, the lamp of the body is the eye. और यीशु मसीह ने 22वें वचन में कहा, शरीर का दिया आंख है. That means, what is your aim in life? इसका मतलब है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है. And if your aim in life is God and His will in your life, then God will fill your life with so much of love and light in your life. अगर आपका लक्ष्य परमेश्वर है, परमेश्वर के जीवन है, तो आप परमेश्वर आपको जो है प्रकाश से भर देंगे, परमेश्वर के जीवन से भर देंगे. But if your aim in life is to have a good time in this world and a very little time with God, then there is so much of darkness. Your spiritual life will become sick. अगर आपका लक्ष्य जो है इस दुनिया पर की चीजों के ऊपर है, यहाँ पे अच्छे समय बिताने के ऊपर है, तो परमेश्वर की ओर की जो इच्छा जो है आपके जीवन में कम होगा, वो कम होगी. And Jesus says, if our life is on earth, if our mind is on things of this world, then we are living in darkness like the people of this world. यीशु मसीह ने कहा कि हमारा मन अगर पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इस पृथ्वी पर के लोगों के जैसे अंधकार में जीते हैं. People in this world only think about this world, the things of this world, and they have no time to think about God at all. इस दुनिया के लोग जो है इस दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे जो समय बिताते हैं उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं होता है. And their life is full of darkness because they cannot see the glory of God and the future that is there in this whole eternity. उनका जो जीवन अंधकार से भरा हुआ है, क्योंकि वो अपने भविष्य में परमेश्वर की ज्योति को नहीं देख पाते हैं, अनंतकाल की जीवन की प्रकाश को नहीं देख पाते हैं. And when we allow all the things of this world to come and occupy our minds and our lives and our aim, then our life also will become like darkness where there was light. और जब हम इस दुनिया की सारी चीजों को अपने मन में जगा देते हैं कि वो हमारे मन में आ जाए, फिर जो है वो अंधकार हमारे मन में आ जाता है, परमेश्वर का जो ज्योति है वो नहीं होता है. And verse 24 says we must have only one master in our life, that is one Lord, that is Jesus Christ. और 24वें वचन में लिखा है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही स्वामी होना चाहिए, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है. There is the second Lord is money. और दूसरा जो प्रभु है वो पैसा है. And money can buy so much of good things in this world. और पैसा इस दुनिया की बहुत सारी चीजें खरीद सकता है. So if we love money, then we will despise God. अगर हम पैसों से प्रेम रखें तो परमेश्वर को हम निंदा करेंगे. If we love God, then we will despise money. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो पैसे को तुच्छ जानेंगे. And Jesus himself said, you cannot serve God and you cannot serve money.
और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम पैसों से और परमेश्वर से एक समान प्रेम नहीं रख पाओगे। All the people of this world, as soon as they are born, their great aim is money. जैसे ही इस दुनिया के जितने भी लोग हैं जन्म लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जो है पैसा बन जाता है। Money is on their mind and their mind is on their money. और पैसा उनके दिमाग में है, उनका दिमाग पैसों के ऊपर है। And the devil has put all these values into our minds. और ये शैतान ने ये सारे जो पैसों को लेके जो फायदे हैं हमारे दिमाग में डाल के रखे हैं। But the Holy Spirit speaks to us of eternal things. परंतु पवित्र आत्मा हमसे अनंत चीज के बारे में बात करता है। Because money can never give us happiness and joy and peace of mind. क्योंकि जो पैसा है वो हमें कभी भी शांति, आनंद, प्रेम और शांति का जो मन है वो नहीं दे पाता। It will bring us more and more anxiety. वो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा चिंता उत्पन्न करता है। That's why Jesus said, don't be anxious about what you shall eat, what you shall drink, where you shall go, what your future will be. I will take care of you. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, तुम क्या पियोगे, क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारा ध्यान रखूंगा। In fact, he said in the end of verse 25, is not life more than food and a body more than clothing? यहाँ तक कि 25वें वचन के आखिरी भाग में प्रभु यीशु ने कहा, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? Yes, there is something more than having, eating and drinking and sleeping. And there is, life is something more than that. और खाने से, पीने से, सोने से ज्यादा जो जीवन है उससे भी कहीं अधिक है। Unbelievers do not have any aim in life. और जो अविश्वासी है उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। They keep on thinking, they eagerly seek after these things. वो जो है बहुत ही यत्न से इन सारी चीजों का पीछा करते हैं। That is written in Luke chapter 12. The same thing is written. और यही वाक्य जो है लूका उसके 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। Verse 30. लूका 12 उसका 30 वचन। It says, for all these things, the nations of the world eagerly seek, but your Father knows that you need these things. क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। See, all the people around you, your relatives, friends, all of them, they're eagerly seeking after money and earthly things. देखिए आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार जितने भी लोग हैं बहुत ही यत्न के साथ पैसों के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे खोजते रहते हैं। They love to talk about earthly things. They say the more we get it, the more happy we'll get. That's what they think. और वो जो है संसार की चीजों के बारे में बात करने के लिए बहुत खुश रहते हैं। वो सोचते हैं कि जितना हमें ये चीज मिलेंगी उतने हम खुश रहेंगे। But what about us? God knows that we need these things and He will provide for us. परंतु परमेश्वर जानते हैं कि हम इन सारी चीजों की आवश्यकता है और परमेश्वर हमें देंगे वो। Has He not provided for our food and for our clothes and for our house up to this day? क्या हमें उन्होंने खाना, हमारा पहना, अपने हमें जो रहने का जगह है अब तक नहीं दिया है? Jesus said He assured us, all His children, all His disciples who come to Him, that they'll definitely have these things every day of their life if they follow Him. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जितने भी लोग उनके पास आते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, उनसे कहा है निश्चित रूप में आपके जीवन भर ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी ही। God has not promised us that we'll have great riches. परमेश्वर ने हमें वायदा नहीं किया कि हमारे पास बहुत धन दौलत होंगी। But He has given us more than we require also. परंतु उन्होंने हमें हमारी जरूरत से बढ़कर दिया भी है। So Jesus said, you be content, and now the rest of the time you seek after God and seek after His work and do His will. इसलिए प्रभु ने कहा है कि आपके पास जो कुछ भी है अब उससे संतुष्ट रहो और परमेश्वर के बाकी का समय परमेश्वर के राज्य के खोज में, परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के कामों में लगा दो। Then you'll have treasure in heaven. फिर आपके पास एक खजाना स्वर्ग में होगा। So then always our longing will be for heaven and for the Lord and to see the people of God. फिर हमारा जो इच्छा है हमेशा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर, परमेश्वर के जन की ओर हमेशा लगा रहेगा। So then we will be happy to come for the meetings and happy to read the word of God and happy to pray. और फिर हम बहुत ही खुश होंगे सभा में आने के लिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। Otherwise, if we are seeking after the things of this world, then we will get all bored with the word of God and prayer and seeking the people of God and having fellowship with people. अगर हम इस संसार के चीजों के पीछे ही लगे हुए रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से उब जाएंगे, प्रार्थना करने से उब जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ उब जाएंगे। ये सारी बातें हमारे साथ हो जाएगी।
then our time on earth will get over and we'll waste our time running after these things, and God will one day judge us. और एक दिन हमारा जो समय इस पृथ्वी पर का खत्म हो जाएगा, हमारा ये दौड़ है खत्म हो जाएगा, यीशु परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे एक दिन। And then we will have great sorrow and sadness, because having known the truth, we have just followed after the things of this world and the people of this world. फिर उस दिन हम बहुत ही दुखी होंगे, उदास होंगे कि सच्चाई जानने के बावजूद हमने वो सारी बातों का पीछा नहीं करके संसार का पीछा किया है। And we have to have a great eagerness to seek after God. और हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम प्रभु का खोज करें। And the more we taste God, the more we want it. जितना हम प्रभु को चखेंगे, हम उतना प्रभु को और चाहेंगे। Psalm 37 we saw, we delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. जैसे कि भजन संहिता 37 में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर में आनंदित रहो तो तुम्हारी मन की इच्छा है सब कुछ प्रभु आपको देंगे। So we love God more, then we get more and more of God's will and God's purposes in our life, and we will become more and more joyful and happy. और जितना हम प्रभु से प्रेम रखेंगे, उतना ही परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में मिलती जाएगी, और उतना ही हम प्रभु में आनंदित रहेंगे हमेशा। And our longing will be for the Lord and for His word, and to see that the word of God grows in our land, and people also grow in the word of God. और हमारी जो सबसे बड़ी इच्छा वही होगी हमारे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, और हमारे देश में परमेश्वर का वचन बढ़े, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की ओर आए, ये इच्छा होगी हमारी। So this is where the devil tempts us every day. तो यहीं पर शैतान जो है हमें रोज लुभाता है। The devil is not interested in tempting unbelievers because they're already in his hands and they just love all these things. और शैतान जो है अविश्वासियों को लुभाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, क्योंकि वो पहले से ही उसके हाथों में है और उसी में वो सब खुश है। We were under the control of the devil, and the devil wants us back into his kingdom. और हम जो है शैतान के नियंत्रण में पहले थे, तो वो चाहता है कि वापस से हम उसके राज्य में चले जाएं। Not that he loves us, because he hates us and he wants to torture us. और वो इसलिए नहीं कि वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे नफरत करता है, वो हमें सताना चाहता है। If he can tempt Jesus, definitely he'll tempt you and me. अगर वो यीशु मसीह को तक लुभा सकता है, तो वो मुझे और आपको भी जरूर लुभाएगा। And so many times we have given into his temptations, we have yielded to his temptation, and we have fallen into all sorts of sins. और कहीं बार हमने उसकी लुभावनी बातों में आ गए हैं, पापों में गिर गए हैं, उसकी लुभावनी में फंस चुके हैं। The Bible says in 1 John chapter 2, यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में बाइबल कहता है, verse 15, उसका 15 वचन, यूहन्ना 2 उसका 15, do not love the world nor the things of this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. It's 1 John brother. Yeah, 1 John chapter 2 verse 15. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So if we love the world and the lust of the flesh, it says in verse 16, and the pride of life and the lust of the eyes, then God's love will go away from our life. जैसे कि 16वें वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम जो है शरीर की अभिलाषा पर, आंखों की अभिलाषा पर और जीविका के घमंड पर ही अपने प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर पिता का प्रेम हमें नहीं है। And the Holy Spirit will depart from our life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। The Holy Spirit has come to take us closer to Jesus and make us walk with the Lord, and we are doing the things that are hateful to the Lord. और पवित्र आत्मा आया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब होकर उसके साथ चल सके, परंतु हम ऐसे काम करते हैं जो कि उसको बिल्कुल भी घृणा आती है जिससे। And God has kept us in this world to be tested whether we love him. God wants us to prove us to live in such a way so that we can prove to God that we love him more than all the things of this world. और परमेश्वर ने हमें इस जगत में रखा है ताकि हमें वो परखे कि क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं, और हम उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं कि नहीं, ये परखने के लिए रखा हुआ है हमें। All these things are very enjoyable to us: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही आनंद के विषय होते हैं। These desires are like gods in this world compared to all the gods of the unbelievers. तो ये इच्छाएं जो है इस दुनिया में ईश्वरों की तरह है, उन ईश्वरों से हम जब तुलना करते हैं जो अविश्वासियों के हैं। The people of this world enjoy these gods and worship them. और इस दुनिया के लोग इस ईश्वर से प्रेम रखते हैं, इसकी आराधना करते हैं।
they enjoy good food, and they live their lives to eat good food. और अच्छे खाने भोजन से बहुत ही बहुत आनंद उठाते हैं और ये जीते ही हैं ये अच्छे भोजन खाने के लिए. And they love sexual immoralities. और वो जो है लैंगिक पापों से जो है प्रेम रखते हैं. Because of that, they fall into all sorts of sin, and ultimately they regret. और इसी के कारण सारे पापों में वो गिर जाते हैं, आखिरकार पछतावा करते हैं. And the lust of the eyes is to want more and more material things. और आंखों की अभिलाषा ये है कि हम ये जो संसारिक चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं. Things are never enough for them. They're not satisfied with the things that they have. तो उनके पास जो भी चीजें हैं वो उनके काफी नहीं होता है. उनके पास की चीजों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते हैं. They want food, clothes, money, so that they may show off to others and may please their relatives and friends. और उन्हें चाहिए होता है खाना, कपड़ा, पैसा, ताकि वो सब कुछ वो अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को दिखा पाए कि उनके पास ये सब कुछ है. The temptation is to see what will my friends think about me, what will my relatives think about me. उनका लुभावना ये होता है कि मेरे जो रिश्तेदार है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे मित्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Then the boastful pride of life. फिर जो जीविका का घमंड है. That we want to be somebody great, we want everybody to acknowledge us, both outside of the world and also in the church. हम चाहते हैं कि हम महान बन जाएं और दुनिया के लोग हमें पहचानने लगे और बाहर के लोग भी हमें जानने लगे. So we do things to impress other people. फिर हम ऐसे काम करते हैं जिससे हम दूसरों को आकर्षित कर पाए या प्रभावित कर पाए. This Jesus said is the pride of life. इसी को यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि ये जीविका का घमंड है. What is the use of impressing people? We have to impress only God. God is the one who looks at us. और हमें लोगों को प्रभावित करके क्या मिलेगा? हमें सिर्फ परमेश्वर को ही प्रभावित करना है, क्योंकि परमेश्वर हम पे दिलचस्पी लेता है. Their praises are not going to last useful in the last day. और उनकी जो प्रशंसाएं हैं वो आखिरी दिनों में कोई काम नहीं आने वाली है. The Bible says, the Apostle John says, these are not from the Father but from the world. और प्रेरित यूहन्ना यहाँ पे कहते हैं ये पिता परमेश्वर से नहीं है, ये संसार से है. And the world is passing away and also its lusts. और जो संसार है वो और जा रहा है, उसकी अभिलाषाएं भी चली जा रही है उसके साथ. We see that the world and all the rich people, they also die. हम देखते हैं इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो भी मरते हैं. All the beautiful ladies and the strong men, they also die. जितने भी सुंदर सुंदर जो महिलाएं हैं, जो तंदुरुस्त पुरुष हैं, वो भी मरते हैं. And all the great people who have got great names, they also die, and nobody remembers them. और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े नाम हैं वो भी मर जाते हैं, उनको कोई याद नहीं भी करता. And you and I, who if you do the will of God, we will remain forever and ever in the eyes of God. अगर हम परमेश्वर की इच्छा करेंगे, मैं और आप परमेश्वर की नजरों में हमेशा के लिए रहेंगे. In the Hebrews chapter 11 speaks about the heroes of faith. इब्रानियों के 11वें अध्याय में जो विश्वास के नायक है उनके विषय में लिखा हुआ है. Many of them suffered so many difficulties and problems because they feared God and they were believers. और उनमें से बहुतों ने बहुत सारे कष्ट, मुसीबतों का सामना किया, दुखों का सामना किया, क्योंकि विश्वासी थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे. Because of them, God valued them. और उनकी वजह से परमेश्वर ने उनको बहुमूल्य जाना. The people in this world do not even know their names and do not value them at all. इस दुनिया के लोग उनके नाम तक नहीं जानते, उनको बिल्कुल भी मूल्य नहीं देते हैं. At the same time, God doesn't value all the great people of this world who are good and beautiful and handsome and clever and wise of this world. ऐसे ही परमेश्वर भी इस दुनिया के जो बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, जो सुंदर है, जो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मूल्य नहीं देते हैं. God values only those who fear him and obey him. परमेश्वर उन्हीं लोगों को मूल्य देते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं. And for such people, God will give us the Holy Spirit. ऐसे लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे. And we must cry out to God, Lord, it's only by the power of your Holy Spirit I can overcome all these desires of this world. और हमें परमेश्वर की ओर पुकार के कहना है कि प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही इन सारे अभिलाषाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर मैं जय पा सकता हूँ. That is the grace of God can keep us from all anxiety and all immoralities and all love of money. और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें इस सारे लैंगिक पापों से, पैसों के प्रेम से और सारी चिंताओं से हमें दूर रखेगा. And the Holy Spirit will remind us when we become proud that these are the things that you should not think.
और पवित्र आत्मा हमेशा हमें याद दिलाएगा, जब भी हम घमंडी होंगे वो हमसे कहेगा ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करना है, because we are the special people of God. क्योंकि हम परमेश्वर के खास लोग हैं। And God wants us to live with him for all eternity and enjoy the blessings of God and keep us ourselves pure. और परमेश्वर चाहते हैं कि अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ जिए, परमेश्वर की आशीषों को पाले और अपने आप को शुद्ध रखें। In First Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय verse 9. 9वां वचन। But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession, that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारियों, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्वैत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Yes, we are a special people of God, and God wants to prepare these special people for all eternity. और हम जो है परमेश्वर के खास लोग हैं और परमेश्वर इन खास लोगों को तैयार करना चाहते हैं अनंत काल के जीवन के लिए। That we may show forth the excellencies of him, that is his wisdom and his qualities of character of him in this world. ताकि हम उसकी अद्भुत ज्योति को दिखा पाए, जो कि परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का जो चरित्र है इस पृथ्वी पर, हम उसे दिखा पाए। God has called us out of darkness, living in the all sin, into his marvelous light. परमेश्वर ने जो हम पाप में जी रहे थे, अंधकार से जी रहे थे, वहां से हमें परमेश्वर के अद्भुत जीवन की ओर बुलाया है। And verse 10 says, for you are not a people, but now you are the people of God. You have not received mercy, but now you have received mercy. 10वें वचन में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। So we were not the people of God. Israel was the people of God. We were complete idolaters and living in sin and had no values in our life. हम जो है परमेश्वर की प्रजा बिल्कुल भी नहीं थे। इज़राइल जन परमेश्वर की प्रजा थी। हम पाप में जी रहे थे, मूर्ति पूजा में जी रहे थे। Now we are the people of God. अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं। And Galatians chapter 6 towards the end, we are the Israel of God, the new Jerusalem. और गलातियों के 6ठे अध्याय में आखिरी वचनों में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के इज़राइल है, नया यरूशलेम है हम। Those people who worship God in spirit and in truth. जो लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। God does not want hypocritical people. परमेश्वर पाखंडी लोगों को बिल्कुल नहीं चाहता है। Who only wants to make an outward show that they belong to the church and who are believers and disciples, but not attempting to obey him in real life. और जो सिर्फ वो दिखाते हैं कि बाहरी रूप से हम चर्च में हैं, विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, परंतु उनका असली जीवन जो है ये सच उसमें नहीं रहता है। There are so many believers who are living a very double life. अब बहुत से विश्वासी हैं जो कि दोहरा जीवन जीते हैं। So but the Lord doesn't want us to live a double life. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम दोहरा जीवन जिएं। It says in verse 11, beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which war against the soul. 11वें वचन में लिखा है, ये हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। So we have to consider ourselves as a separate people. We are strangers and pilgrims in this world. तो हमें अपने आप को ये मानना है कि हम अलग किए हुए हैं, हम इस दुनिया में, इस देश में परदेशी हैं, हम यात्री के समान हैं। And we have to keep away from fleshly lusts. हमें इस संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को बचा के रखना है। The fleshly lusts like eating and drinking and satisfying our belly. संसार की अभिलाषा जैसे खाना पीना, अपने पेट को खुश रखना, satisfying our sexual desires and living in immoralities. हमारे लैंगिक विषयों में उसको खुश करना और पाप में जीना, and living in a lot of luxuries, just forgetting about God and forgetting about poor people. बहुत ऐशो आराम में जीना, परमेश्वर के बारे में भूल जाना, परमेश्वर के लोगों के बारे में भूल जाना। All these lusts are very pleasurable to us, but they war against our soul. They destroy our soul. ये सारी जो लालसाएं हैं बहुत ही आनंदित होते हैं हमारे लिए, परंतु वो हमारी आत्मा से युद्ध करती है, उसे नाश करती है। Our soul loses its peace and joy, and then we spiritually die. हमारा जो आत्मा है शांति आनंद खो देता है और आत्मिक रूप में हम मर जाते हैं। Then all sorts of sin comes into our life: anger, hatred, bitterness, and pride, and all the bad nature comes into our life.
सारे प्रकार के जो पाप है वो हमारे जीवन में आ जाती है, जैसे कि गुस्सा, नफरत, कड़वापन और घमंड, ये सारी बातें आ जाती है। But the Lord gives us the Holy Spirit that we can keep our behavior excellent among the Gentiles. It's in परंतु verse 12. 12वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं और ताकि हमारा जो स्वभाव है सारे लोगों के सामने उत्तम रख पाए हम। So, dear brothers and sisters, God is expecting the best from us. तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे उत्तम चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं। He wants to give us the Holy Spirit so that we can live a life of victory and life of obedience to Him and a life that is close to Him for our own good. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन एक आज्ञाकारिता में हो, परमेश्वर के और करीब होकर एक अच्छा परमेश्वर का आत्मिक जीवन हम जी पाए। He wants us to run away from our thoughts, from all these evil desires that tempt us, and these temptations are all around us. और परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो सोच विचार जो हमें लुभाती हैं, ये सारी बातों से जो है हम बचे रहें और जो हमें हमेशा लुभाती ही हैं। And we must not copy unbelievers or also backslidden believers who are not following the Lord. हमें अविश्वासियों का नकल नहीं करना है, जो पीछे हटे हुए विश्वासियों का नकल नहीं करना है, जो कि प्रभु का पीछा नहीं करते हैं। There are so many believers who come close to the Lord and after they love the world and their love for God has gone very, very low. बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के करीब आ चुके हैं, थोड़े दिन के बाद उनका जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर की इच्छा है, वो सब कुछ नीचे जा चुका है। And they're living all sorts of sins. वो सारे प्रकार के पाप में जी रहे हैं। And the Lord is a jealous God. He wants to be our God because He has bought us by the precious blood of Jesus Christ. और हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें खरीदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। And we are very costly to Him. और परमेश्वर के लिए हम बहुत ही महंगे हैं। We are worth crores of rupees. हमारा मूल्य जो है करोड़ रुपयों के बराबर है। More than 1,000 crores, 10,000 crores, each one of us who are born again. और 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हम मूल्यवान हैं, जितने भी नए जन्म पाए हुए लोग हैं। And if we go back into the ways of this world, then God is not happy at all with us. अगर हम इस संसार के मार्गों में वापस से मुड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमसे बिल्कुल खुश नहीं होते। In the Old Testament, God had warned the children of Israel not to go back into and mix around with the people around them. पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल जन को ये चेतावनी दी थी कि वो दुनिया के लोगों के बीच में जाकर उनके साथ कोई भी संगति या मेल मिलाप ना रखें। We go to Joshua chapter 23. Many of us are reading Joshua, the book of Joshua. यहोशू की किताब उसके 23वें अध्याय में जाएंगे। Verse 6. उसका 6वां वचन। It says, "Be very firm then to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right hand or to the left." इसीलिए Verse 7 also, yeah, and 7 also, in order that you may not associate with these nations that which remain among you, or mention the name of their gods, or make anyone swear by them, or serve them, or bow down to them. यहोशू 23वां अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनको दंडवत करना। So the children of Israel were a special people to God, and God did so much good to them. इज़राइल के जो जन थे वो परमेश्वर के लिए बहुत ही खास लोग थे और परमेश्वर ने बहुत भलाई की थी उनके लिए। But verse 8 says, "But you are to cling to the Lord your God as you have done to this day." और 8वें वचन में लिखा है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। When the children of God cling to Him, God blessed them and kept them safe from the evil attacks of the devil. जो इज़राइल के जन जो प्रभु से जुड़े हुए थे, परमेश्वर की भक्ति में थे, परमेश्वर ने उनको सारे जो दुष्ट लोगों की जितने भी आक्रमण हुए थे उसमें से उन्हें बचा के रखा था। But when they began to compromise and mix around with all the people around them who lived in immorality and idolatry, God began to go away from them. जब वो लोग जो है जो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुलने लगे, उनकी मूर्ति पूजा में वो लोग शामिल होने लगे, समझौता करने लगे, तो परमेश्वर उनसे दूर हो गए। Verse 9 says, "For the Lord has driven out great and strong nations from before you, and as for you, no one stood before you to this day.
9वें वचन में यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। So God has done so much in our life up to this very day. और परमेश्वर ने अब तक के जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Do you want to be like the people of this world or backslidden believers? क्या आप इस दुनिया के लोगों के समान बनना चाहते हो या तो फिर जो पीछे हटे विश्वासी है उनके तरह? These thoughts will come into our mind when the devil puts these thoughts into our mind. जब शैतान ये विचार हमारे दिमाग में डालता है तो ये सोच विचार हमारे दिमाग में आ जाता है। We must remember God has done so much good to us and our families and our brothers and sisters in the Christ, and God has given us so much spiritual blessings. परंतु हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, जो मसीह में जो भाई बहन है उनके लिए बहुत भलाई के काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। Verse 11 says in chapter 23, so take diligent heed to yourselves to love the Lord your God. यहोशू 23 उसके 11वें वचन में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। So we have to work hard. Say, no, I want to be very, very careful in my life, how I live and how I spend my time. और हमें बहुत ही सावधान रहना, यत्न करना है कि मैं अपने जीवन को कैसे बिताता हूँ, मेरे समय को कैसे बिताता हूँ, इस बात को लेकर। Am I reading the word of God? Am I praying? I'm coming for fellowship. क्या मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं संगति में आता हूँ? Or I'm neglecting all these things and mixing around with unbelievers. या तो फिर मैं इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके अविश्वासियों के साथ ही मेल मिलाप रखता हूँ। Then I will learn all their bad habits and fall into sin and be far away from the Lord. फिर हम उनकी सारी गलत आदतें सीख लेंगे, पाप में गिर जाएंगे और प्रभु से बहुत दूर हो जाएंगे। Then God warned them in verse 12, if you ever go back and cling to the rest of these nations that which remain among you and intermarry with them, so that you may associate with them and they with you, know that certainly, verse 13, that the Lord your God will not continue to drive these nations out from before you, and they will be a snare and a trap to you and a whip on your side and thorns in your eyes until you perish off from this good land which the Lord your God has given you. 12 वचन और 13 वचन, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधी और रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए फोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। See, God warned them so many times. Say, if you disobey and you run after all these things of the people, of the customs of the people around you, then I will forsake you, and then you will go back and live a very miserable life, and you will get destroyed. और परमेश्वर ने बहुत बार उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुम इन जो अविश्वासी लोग हैं तुम्हारे आसपास के, उनके साथ तुम मेल मिलाप रखोगे, उनकी मूर्ति पूजाओं में, उनके सारे रीति रिवाजों में तुम शामिल होगे, तो तुमसे मैं बहुत दूर हो जाऊंगा और तुम नाश हो जाओगे। इस बात की चेतावनी परमेश्वर ने बार बार दी है। So God has given you and me a choice. तो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक चुनाव दिया है। The children of Israel had a choice, and most of them went against the will of God and did what their surrounding people did it, and because of that they were destroyed. और इज़राइल जन के पास भी ये चुनाव था, परंतु उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर वो जो उनके आसपास के लोग थे उनकी रीति रिवाजों में ही वो शामिल हो गए, समझौता करने लग गए, इसलिए उनका नाश हो गया। Likewise, so many believers who have come to the Lord with great love for the Lord, they have gone backslidden because they love the things of this world, and their spiritual life is almost gone, and so much sin is there in their life. ऐसे ही बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से बड़े प्रेम करके परमेश्वर के पास आए थे, वो परमेश्वर से पीछे हट चुके हैं, क्योंकि उनका जो जीवन में जो है संसार का प्रेम, संसार की चीजों का प्रेम और बाकी सारी चीजों का जो इच्छा है वो आ गई है। इसलिए all the lusts of the flesh, lust of the eyes, and pride of life are enemies of God. और जितने भी शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषा, जीवन का जो घमंड है, वो सब कुछ परमेश्वर के बैरी हैं। And if we love all these things, we also become God's enemies. अगर हम इन चीजों से प्रेम करने लग जाएंगे तो हम भी परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे। We can take the name of God, but God is not with us. हम परमेश्वर का नाम तो ले पाएंगे, परंतु परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। We cannot worship God in spirit and in truth. हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से नहीं कर पाएंगे। So
we have to choose, as Joshua told the children of Israel, chapter 24, verse 15. हमें जैसे कि यहोशू ने इस्राएल जन को कहा था, वैसे ही हमें चुनना है। यहोशू 15 अध्याय वर्ष 15। If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods of your father and who served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in the land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Which verse, brother? Verse 15. 24? 24:15. 24:15. यहोशू 24 उसका 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानत के उस पार करते थे पुरखा, और चाहे एमारियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। So Joshua gave them a choice. यहोशू ने उनको एक चुनाव दिया। यहाँ पर You can choose to do what you like. तुम चुन सकते हो कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। God will never force us. परमेश्वर हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। So according to our choice, we'll become what we will be. और हमारे चुनाव के अनुसार हम वो बन जाएंगे जो हम बनेंगे। Joshua said he is going to serve the Lord. I'm going to choose to serve the Lord and to do what is pleasing to God. और यहोशू ने कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर को जो भाता है सिर्फ वही काम मेरे जीवन में मैं करूंगा। So you we brothers and sisters, all of us, each one, every day we have a choice. और हम भाई बहन, हम सभियों के पास प्रतिदिन एक चुनाव होता है। Whether we can choose to please our lusts and our desires, or we please to the Holy Spirit who wants us to come closer to God. या तो फिर हमारी अभिलाषाओं को, लालसाओं को हम खुश कर सकते हैं, या तो पवित्र आत्मा को हम खुश कर सकते हैं जो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। The more we try to please God, the more we get the interest to live for Him and delight in Him. जितना हम परमेश्वर को खुश करना चाहेंगे, उतना ही हमारे अंदर दिलचस्पी होगी कि हम परमेश्वर में आनंदित रहे, परमेश्वर को खुश करते रहें। The more we do our own will and please our own lusts, then the more farther and farther we go away from God. अगर हम जितना हमारी इच्छाओं को खुश करते रहेंगे, हमारी लालसाओं को पूरी करेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। The farther and farther we'll go away from the church. और जो कलीसिया है उसमें से भी और भी दूर हो जाएंगे हम। We will not like to listen to the word of God. हम परमेश्वर के जो वचन है वो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। But one day we will regret it if we take a bad decision every day. अगर हम प्रतिदिन एक गलत चुनाव करते हैं तो एक दिन हमें पछतावा जरूर होगा। In Hebrews it says, today is the day of salvation, so choose God. और इब्रानियों में लिखा हुआ है कि आज का दिन उद्धार का दिन है, तो परमेश्वर को चुनो। And choose God and live. और परमेश्वर को चुन के जियो तुम। And the Lord has got much hope for us and much that it will go well with us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है ताकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। God has a plan for our welfare and not for our calamity. और परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, ना कि हमारे नाश के लिए। I have lived for the Lord more than 40 years. मैं प्रभु के लिए जिया हूँ 40 साल से भी बढ़कर। And I've really thanked God, said, Lord, I thank you for all that you have done for me. I wish I had followed you more earnestly. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रतिदिन की परमेश्वर ने बहुत बड़े-बड़े कार्य मेरे जीवन में किया है, और मैं इच्छा रखता हूँ कि काश मेरे पास प्रभु इससे भी कहीं अधिक साल होते जहाँ पे मैं आपका पीछा करता होता। All the good things of this world are useless in the sight, and God has shown me that they are absolutely worthless. और मुझे परमेश्वर ने मेरी आंखों में दिखाया कि दुनिया की चीज जो है बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई मूल्य नहीं है, प्रभु ने मुझे दिखाया। And all the position in the church and all the greatness in the church and what people think about you is thoroughly useless. और जितने भी जो स्थान है, मान है कलीसिया में, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, अचानक से हमें ऐसे लगेगा कि इसका कोई उपयोग ही नहीं है। One day you and I have to stand before God. एक दिन मुझे और आपको जो है प्रभु के सामने जाके खड़े होना है। And God will say, I am happy that you tried your best to please me. और प्रभु उस दिन कहेंगे कि मैं खुश हूँ कि तुमने कोशिश की कि मुझे प्रसन्न करो। So, dear brothers and sisters, let us seek our best to please the Lord in our day-to-day life. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम पूरी यत्न करें, उत्सुकता से रहे कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु परमेश्वर को खुश करते जाएं। Amen.
We can hear Brother Ratnaswamy share, and after any brothers are there, Brother Raju can share.